हे गुरु वाहे गुरु साहिब जी। आसा महला पंजवा। जन्म जन्म की मल तो वै पराई, अपना कीता पावै। इहा सुख नहीं दरगह ढोई, जमपुर जाए पचावै। निंदक ऐला जन्म गवाया, पहुँच ना सके काहू बातै। आगे ठौर ना पाया रहा, गिरद पया निंदक बपरे का। क्या वो करे बिचारा, तां बिगुता जय कोई ना रखे। यो किस बह करे पुकारा, निंदक की गत कतहु नहीं। खसमै वै वाणा, जो जो निंद करे संतन की। त्यों संतन सुख माना, संता टेक तुम्हारी स्वामी। तू संतन का सहाय। कहो नानक संत हर रखे, निंदक दिए रोड़ाई। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पिखिया, से फिर गरवास ना परिया रे। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सतगुरु। लोक परलोक दे रखिया ज्ञान दे सागर गुरुआं, भगतां भट्टां सिखां दी इलाही बाणी। जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही साध संगत। धनता दे योग वडभागे हो सतगुरु जी ने किरपा मेहर दया कीती है। सानू अपने चरनां दे नाल जुड़न दा बहुत प्यारा समा बख्शिया। सतगुरु आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा। चिंता लाही हमारी, तो मैं आया शरणी आया, भरोसे आया कृपा आया। ज्यों भावै त्यों राख स्वामी, मार्ग गुरह पठाया। महाराज जी दी मेहर सतगुरु दी कृपा दे नाल गुरु दे चरनां दे विच पहुंचे हाँ। सच्चे पातशाह जी मेहर करन कृपा करन। जिस भरोसे दे नाल असीं आए हाँ, उस भरोसे नूं महाराज पक्किया करे।
ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਆਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ, ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਸੁਣਾਵਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ, ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਿੰਦਾ।
अज का विषय है निंदा। आसा महला पंजवां। जो निंदा करता है, जो निंदक है, उस दे बारे ही सारा शब्द है। गुरु अर्जन देव महाराज जी के मुखारविंद तो उच्चारण किया होया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 380 के उपर अंकित है। आसा महला पंजवां। जन्म जन्म की मल धोवै पराई, अपना कीता पावै। यहाँ सुख नहीं दरगह ढोई, जमपुर जाए पचावै। गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमान करते हैं भी जिहड़ा निंदक मनुख है, निंदक पुरख है या कोई भी है, वो अपने जीवन दे विच हमेशा बोझ ही पाउंदा है। वो अपना सारा जीवन जिहड़ा है दूसरे दी मैल धोण ते ही ला दिंदा है और पराई जिहड़ी है, बुराई जिहड़ी है, वो अपने अंदर ग्रहण कर लैंदा। जे किसी ने पराई किसी दी वडियाई हासिल करनी होवे तो उसनूं वडियाई करनी पेगी। जे किसी ने किसी दी चंगियाई हासिल करनी होवे उसदी वडियाई करनी पेगी। जे किसी ने किसी दी बुराई हासिल करनी होवे उसदी निंदिया करनी पेगी। निंदिया करने दे नाल बाणी विच लिखिया है कि सारियां बुराइयां जिहड़ियां ने वो इंसान दे विच आ जांदियां हन, दूजे दियां भी। जन्म जन्म की मल धोवे पराई। निंदक जिहड़ा दूसरे मनुख की जन्म जन्म की मैल तक धो दिंदा। इस जन्म की तो धोंदा ही है। वो इन्नी जदों कोई निंदा किसी की करन लगदा, वो हद्दां जिहड़ियां ने वो पार कर जांदा। तो गुरु साहब जी कहंदे ਉਹਦੇ जन्मां जन्मां की मैल जिहड़ी सारी धो दिंदा, अपने सिर ते लै लैंदा। जन्म जन्म की मल धोवे पराई, अपना कीता पावै। इस तरह वो अपने इस जन्म दे विच अपना बीजा जिहड़ा है वो वढदा है, वो प्राप्त करदा है। अपना कीता पावै। बाणी दे विच एक पंक्ति है, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, हुक्म कीए मन भामदे राह भीड़े अगे जावना। नंगा दो जग चालिया तो दिसे खरा डरावना, कर औगण पछोतावना। चाहे कोई मंदा कर्म करे, चाहे कोई चंगा कर्म करे, उसनों अपने कीते दा उसनों ही फल मिलना है। जे कोई बुरा करेगा, बुरा सोचेगा, बुरा बोलेगा, उसनों बुरा फल मिलना है। जे कोई चंगा सोचेगा, चंगा करेगा, तो उसनों चंगा फल मिलना है। सो अज के शब्द विच निंदक बारे दस्या गया, जो निंदिया करदा, वो कहते ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी दूजे की जन्म जन्म की मल धो दिंदा है। तो ये जिहड़ी है ये चीज़ वो माड़े कर्मां करके हुंदी है, मंदे कर्मां करके हुंदी है। कोई भी मनुख दूजे की जदों बुराई करदा है, वो कर्म भाग मंदे हुंदे ने तां करदा है। एक मनुख दूजे मनुख की निंदिया बुराई या किसी को गलत उस समय ही बोलता जदों वो भाग महाराज जी कहते मंदे होंदे ने, खराब होंदे ने। बाणी विच लिखिया, जन्म जन्म की मल धोवे पराई, अपना कीता पावै। उसनों फिर अपना कीता आप ही पाउणा पैंदा है। अपनी बीजी होई फसल जिहड़ी है जां बीज है, उसनों आप ही वढ़ना पैंदा, दूसरा नहीं वढ़दा। जिवें दा कोई कर्म करेगा उन्होंने उदां दा ही फल तैयार करके एकदम महाराज जी रख देंदे ने। जे कोई पुण्य करदा है उसनों पुण्य का फल बहुत छेती मिलता है। जे कोई पाप करदा, अपराध करदा, उसनों उसका फल भी एकदम मिलता है। इस कलयुग विच लिखिया, ऐह कर करे सो ऐह कर पाए। जो किसी दूसरे का दिल दिखाउंदे उसनों भी एकदम उसका फल मिलता है।
उसनों चैन नहीं आउंदी, उसनों परेशानी नहीं आउंदी। जिहड़ा कोई दूसरे नूं बोल कबोल बोलदा है, कोई गलत बोलदा है, बाणी विच लिखिया उसनों भी उसका फल उदों ही मिल जाता है। उसके अंदर दी जिहड़ी भावना है, प्यारी भावना खत्म हो जाती है। वो तरलो मच्छी रहिंदा है, उहदे अंदर काल काली या परेशानी बेचैनी जिहड़ी पैदा हो जाती है। जो बंदा खुश हुंदा है उहदे अंदर बेचैनी नहीं हुंदी, उहदे अंदर चिंता नहीं हुंदी। जिहदे अंदर चिंता हुंदी है उहदे अंदर खुशी नहीं हुंदी। सो इसलिए गुरु साहब जी कहते जन्म जन्म की मल धोवे पराई, अपना कीता पावे। मनुख अपना बीजिया आप ही वढ़ रहा है ते वढ़ेगा। जैसा बीजेगा वढ़ेगा, मना मेरे फल तेरे कर्मां दा। जे तू जग नूं दुश्मन बनाना ते दुश्मन बना ला, जग नूं अपना बनाना ते अपना बना ला। जे रब नूं अपना बनाना ते अपना बना सकदा, रब नूं पराया रखना ते पराया रख ला, तेरी मर्जी है। दूजे नूं खुश करके खुश होना चाहुंदा है ते तेरी मर्जी है। दूसरे नूं दुखी करके दुखी होना चाहुंदा ते तेरी मर्जी है। बाणी विच लिखिया अपना कीता पावै। जन्म जन्म की मल धोवे पराई। पराई मतलब दूजे दी बुराई करके निंदिया करके मनुख अपना फल आप ही भोगदा ते प्राप्त करदा। मनुख दूसरे की निंदा उदों ही करदा जदों दूसरे नाल ईर्खा ते नफरत होवे, सामने वाला चंगा ना लगदा होवे। जे सामने वाला चंगा लगदा होवे उस नाल नफरत ते ईर्खा नहीं हुंदी। गुरु साहब जी फरमान करते हैं, इहा सुख नहीं दरगे ढोई, जमपुर जाए पचावे। निंदिया के कारण गुरु साहब जी फरमान करते हैं उसनों इस लोक दे विच भी सुख नहीं मिलता ते उसनों परलोक दे विच भी खुआर होना पैंदा है। दरगे दे विच ढोई नहीं मिलती। गुरु साहब जी कहते इहा सुख नहीं दरगे ढोई, जमपुर जाए पचावै। गुरु साहब जी फरमान करते ने उसनों जम जिहड़े ने वो नरक दे विच पहुंचा दिंदे ने। ड्यूटी लगी हुई है। बाणी दे विच लिखिया दरगाह दे विच सचखंड दे विच मालक गुरु साहब आप लैके जांदे ने। दरगाह दे विच सचखंड दे विच गुरु साहब आप लैके जांदे ने। किस नूं लैके जांदे ने? धर्मियां नूं, रब दे बंदियां नूं, रब दे प्यारियां नूं। ते नरक दे विच कौन लैके जांदा है? उहदे बारे बाणी विच लिखिया जम का ठेंगा बुरा है वो नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोह मिलियो तिन लिया अंचल लाए। गुरु साहब जी की बाणी कहती है, भगतां की बाणी कहती है, कहो कबीर तब ही नर जागै, जम का डंड मूंड मह लागे। तो जिहड़ा मनमुख हुंदा है, जो निंदक हुंदा है, अज दे शब्द का जो अर्थ है उन्होंने महाराज जी कहते जम जिहड़े ने वो नरक दे विच पचा के आउंदे ने, उत्थे वाड़ के आउंदे ने। इहा सुख नहीं दरगे ढोई, जमपुर जाए पचावे। किन्नों जमपुर छड्डिया जांदा जां छड्ड के आउंदे ने? अज दा शब्द है जिहड़ा पराई निंदिया करदा। जन्म जन्म की मल धोवे। मल का मतलब हुंदा गंदगी। जिहड़ा दूसरे की गंदगी नूं जिहड़ा धोंदा है, पराई निंदिया नूं अपने सिर ते लैंदा है, उहदे सिर ते बोझ वध जांदा है। अपना कीता पावे। इहा सुख नहीं दरगे ढोई, जमपुर जाए पचावे। उसनों जमा दे वस पैना पैंदा है। क्यों? क्योंकि महाराज जी कहते ने इहदे कोल लेखा लैण दे लई उत्थे जाना पैंदा।
निंदक अहला जन्म गवाया, पहुँच न साके काहूँ बाते आगे ठौर न पाया। निंदक ने अपना कीमती जन्म जिहड़ा गुरु साहब जी फरमान करते हैं उसने निंदा करके गवा लिया। पहुँच न साके काहूँ बाते आगे ठौर न पाया। सो अज दे शब्द विच निंदा बारे लिखिया गया है। भगत कबीर जी महाराज उन्हां दा पुत्र आके कबीर जी नूं कहंदा, महाराज पिता जी फलाना बंदा तुहाडी बहुत ज़्यादा निंदिया करदा। कबीर जी नूं कहंदे उन्हां दे बेटे पुत्र जी, महाराज जी फलाना जिहड़ा है ना वो तुहाडी बहुत निंदिया करदा है। कबीर जी कहंदे ते बहुत चंगी गल है, बहुत चंगी गल है। सफाई करन नूं नौकर रखना पैंदा है, ये सानूं फ्री दे विच मिल गया। अपने पुत्र नूं कहंदे तूं इदां कर, जिहड़ा साडी निंदिया करदा है ना तूं ओहदे नाल कपड़े लैके आया कर ते ओह मैं ओहदी सेवा करनी है। कहंदे भी ओह तुहाडी निंदिया करदी, ओहदे तुसीं कपड़े धोने ने? कहंदे हाँ बिल्कुल। क्यों? कहंदे भी वो साडा भार हौला करदा पिया है। तुहानूं पता साडा जिहड़ा भार है ना, जो भी कोई माड़ा कर्म है निंदिया दे नाल वो खत्म हो जाता है। तो वो साडा भार अपने सिर ते चुकी जा रहा है, चुकी जा रहा है। सानूं भी तो ओहदे काम आउणा चाहिए ना, जिहड़ा साडा काम करदा इन्ना जिहड़ा खास काम कर रहा। साडे जिन्ने भी पापां दा भार, माड़ियां चीज़ां दा भार वो अपने सिर ते लै रहा है। तो जिवें लिखिया होया, कहंदे ओहदे कपड़े धोंदे सी निंदक दे, उसनूं हौली हौली सोझी आ गई भी ये काम माड़ा है। अपने पिता जी नूं कहंदे ने, भगत कबीर जी दे बेटे, कहंदे वो बंदे ने तो तुहाडी निंदा ही करनी हुण छड्ड दित्ती। कहते जे उन्हें अपना काम छड्ड दिता तो अज तो असी भी वह काम छड्ड दिता, असी भी वो कपड़े नहीं धोने। उन्हें साढ़े कपड़े धोने बंद कर दिते ने, असी वो कपड़े धोने बंद कर दिते। किहड़े कपड़े? पापां दे। बाणी विच लिखिया हमरे कपड़े निंदक धोए। और कपड़ियां दी कोई ये नहीं भी जिहड़े शरीर ते कपड़े पाए ने चादर खेसां दी गल कीती है, नहीं। जिद्दां असीं कहंदे करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार, ये जिहड़ा शरीर रूपी कपड़ा संसार दे आया उहदी गल कीती है। कपड़े का मतलब जिहड़े भी कर्म कीते हुंदे ने हमरे कपड़े निंदक धोरे। किसी का बोझ, किसी दी माड़ी चीज़ वो जिहड़ी है अपने सिर ते लै लैनी, ये महाराज जी कहंदे कम निंदक दा है। निंदक अहला जन्म गवाया। अहला का मतलब कीमती। गुरु अर्जन देव जी कहंदे उस निंदक ने अपना बहुत कीमती जन्म जिहड़ा है वो निंदिया करके गवा लिया। पहुँच न साके काहूँ बाते आगे ठौर न पाया। उन्हें कहंदे ये सोचिया सी मैं साधुआं दी, संतां दी, भलियां दी निंदा करके शायद अगे वध जावांगा, सत्कार हासिल कर लवांगा। ध्यान देना, किसी दी बुराई करने वाला बंदा जिंदगी दे विच पिछे जांदा, अगे नहीं वधदा। बाणी विच लिखिया कहंदे आगे ठौर ना पावे। ठौर दा मतलब किते ढोई नहीं मिलदी, उन्हों किते जगह नहीं मिलती। बुराई करने वाला, निंदा करने वाला पहुँच न साके काहूँ बाते। वो किसी भी चीज़ दे विच भले पुरख की बराबरी नहीं कर सकता, तो वो जिथे खड़ा उत्थे ही रह जाता है। उसकी तरक्की रुकती है, उसका वाधा खत्म हो जाता है, तो पतन शुरू हो जाता है। ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕਾਹੂ ਬਾਤੇ ਆਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਇਆ।
ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਨਿੰਦਕ ਬਪਰੇ ਕਾ ਕਿਆਓ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਐਸਾ। ਉਸਨੇ ਬੁਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਨਿੰਦਕ ਬਪਰੇ ਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਨਿੰਦਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਆ ਉਹ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ, ਬੁਰਾਈ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਹਾਂ ਬਿਗੁੱਤਾ ਜੈ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਪੈ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਬਿਗੁੱਤਾ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ, ਖੁਆਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਰਦ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸ ਪੈ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਵੱਕ ਕੱਢੇ, ਜਜਮਾਲਿਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ। ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਗਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ, ਖਸਮੇ ਈਵੈ ਭਣ। ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਗਤ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਢੋਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਗਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ, ਖਸਮੈ ਈਵੈ ਭਾਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਤਿਉ ਸੰਤਨ ਸੁਖ ਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ,
जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। उन्होंने उन्ना ही ज़्यादा खुशी मिलती है, सुख जीवन मिलता है, उन्होंने उन्नी ही तरक्की होंदी है। तुसी इतिहास विच साडे गुरुआं तो भगतां तो लै लो, तरक्की ही उन्होंने की जिन्हां दी निंदिया हुई। जिन्हां दी निंदिया नहीं हुई वो रह गए, जिन्हां दी निंदिया नहीं हुई वो रह गए, जिन्हां दी निंदिया हुई वो बहुत ही अगे वध गए। पहलां जिवें पंक्ति विच आया सी, क्योंकि वह सारा पापां दा भार उस व्यक्ति ते चला गया, वो साफ हो गया, वो साफ हो गया। तो उसने भार दे नाले अपने आप को डुबा लिया, पर जिहड़ा सामने वाला पुरख सी वो होर चढ़दी कला दे विच चला गया। ज्यों ज्यों गुरु नानक महाराज जी नूं लोक माड़ा कहंदे ने, उन्हां दी चढ़दी कला दिनों दिन हुंदी है। ज्यों ज्यों नामदेव नूं, भगत रविदास नूं, कबीर नूं लोक माड़ा कहंदे ने, निंदिया करदे ने, उहदी होर चढ़दी कला हुंदी, तरक्की होई जांदी उहदी। निंदिया करन दा फायदा तो तां सी ना जे भी अगले दी ढिंदी कला हो जाती, उहदी ते होर तरक्की हुई। गुरु साहब जी कहंदे, महाराज जी कहंदे उहदी तरक्की होनी होनी है, क्योंकि ओहदे लई सहायक सिद्ध होई, ओहदे लई सहायक सिद्ध होई। कबीर जी कहंदे साडा भला हो गया, निंदक ने अपने आप नूं बर्बाद कर लिया पर साडा भला कर दिता। निंदक डूबा हम उतरे पार। कबीर जी कौन ने? संत ने, महात्मा ने। पर गुरु साहब जी कहते ने उन्होंने बिल्कुल इसका कोई भी फर्क नहीं पिया, कोई फर्क नहीं पिया। देखो सूरज नूं कोई कही जाए ये हनेरा है, हनेरा है, हनेरा है, कहने दे नाल सूरज ने कोई हनेरा थोड़ा बन जाना। सूरज ने सूरज ही रहना, सूरज ने रात थोड़ा बन जाना। सूरज ने जो चढ़ना वो प्रकाश ने दसना भी ये सूरज है। सो इसलिए गुरु साहब जी कहते ने जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। संता टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई। जिहड़े संत भगत ने, रब दे प्यारे ने, उन्हां दी क्यों ढैंदी कला नहीं हुंदी? क्योंकि मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, उन्होंने तेरे ते बहुत भरोसा है। ध्यान देना, साडी गल रब तक पहुँचती नहीं, पर जिहड़े वाहिगुरु दे प्यारे ने उन्हां दी एकदम पहुँचती है। जदों भी नामदेव जी दे नाल कोई भी वधीकी हुंदी सी, कुछ भी हुंदा सी, वो बेनती करदे सी अपने उस ठाकर नूं। ते जदों उन्हां नूं मंदिर दे विचों भजाया, उन्होंने कुट के बाहर कढ़िया, शूद्र कह के, माड़ा कह के, नीच जात दा कह के, उदों भी बीठल प्रगट हो गए। कहते उन्हें वो जिहड़ा द्वारा सी ठाकर द्वारा, उहदा दरवाजा ही घुमा के रख दिता। बाणी विच लिखिया फेर दिया देहरा नामे को पंडियन को पिछवार ला। जिहड़े पंडित ब्राह्मण सी, पुजारी सी, उन्होंने पिठ हो गई। हंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दिओ मुख लाया, नाम दे वल परमेश्वर का मूँह हो गया। जिवें असी हाल चाल पुछदे आ ना किसी का, चंगे बंदियां दा, ते की रब नहीं हाल चाल पुछदा अपने भगतां दा? वो भी हाल चाल पुछदा कैसे हो। बाणी विच लिखिया रब भी अपने भगतां दे कोल आके पुछदा है भी की हाल है, फिर वो अपना हाल सुणाउंदे ने। भगत नामदेव जी की बाणी विच ते इंज लिखिया, भगत नामदेव जी नूं भगवान पुछदे ने तू कवें ते धरती नूं पुठी कर दें? कहंदे नहीं। तू कहे ते जलवा दिखा दें? कहंदे बस इन्ना ही बहुत है, इन्ना ही बड़ा है। मतलब तू भगतां के वस, भगतां तान तेरा। वो भगतां दे वस है, भगतां दी सुणदा है, भगतां दी पुकार एकदम पहुँचती है। जिहड़ा भैड़ा मनुख है उसकी थोड़ो आवाज़ उत्थे पहुँचती है, सतपुरखां दी पहुँचती है, रब दे प्यारियां दी पहुँचती है, वाहिगुरु दे प्यारियां दी पहुँचती है। किसी दे कोल कोई थर्मामीटर नहीं भी कोई किसी नूं पहचान सके ये वाहिगुरु दा प्यारा है या नहीं।
ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੇ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਰੋਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੇ ਸਭ ਸੁਖੀਆ। ਸੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਭੈੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੋਈ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਸਦਾ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਦਿਸਦਾ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਸਦਾ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਹਰ ਰਾਖੇ, ਨਿੰਦਕ ਦੀਏ ਰੁੜਾਈ। ਰੁੜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਰੁੜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਕਲਪ ਕੇ ਰੁੜਨਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੜਦਾ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਹਰ ਰਾਖੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਭਗਤਿਓ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀਆ ਰੁੜਾਈ, ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਹਰ ਰਾਖੇ, ਨਿੰਦਕ ਦੀਏ ਰੁੜਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।